Hello and welcome back to my channel Inspire with Anushka. Guys, how are you? Hope you all are fine. Guys, actually we are discussing about the crop improvement, that how can we improve our crop, how can we maintain the fertility of soil. So in the way to discuss all these things, we have came to know about the today's topic. The topic for today is the manures and fertilizers. But in today topic we are just going to discuss about the manure because वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स होंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और फिर हमें भी ज़्यादा एडिटिंग में टाइम देना पड़ेगा. सो गाइज़, ये अच्छा है कि हम लोग मैन्योर्स को ही सिर्फ एक वीडियो में देख लें. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजर्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. सो गाइज़, please be prepared for let's starting the topic manures. Today we are going to discuss about the manures. So in recent past 3 years has been modifiedly just increase in the food resources. We are not just gaining the food resources for feeding our population and collecting so much crops from the limited land, because the land is a limited resource and it is nowadays day by day it is reducing. The crop yard areas are reducing, guys. So we must have to maintain the fertility of soil. One of the factors responsible for the increasing has been the use of fertilizers and manures in the soil, that has improved the nutritional value of the soil, and that's why the crops which is grown is nowadays very much high yielding quality and containing the most superior qualities. So guys, this is just because of the use of fertilizers and manure just to regain the fertility of the soil. So rapid growth of the crops in the same field depletes the soil maintenance and its fertility, because repeated growing of the same crops can reduce the fertility of the soil and can just have the one type of nutrition or nutrients, and this single nutrients will become less in the soil, and next time again if we are going to grow all that crops, then it is very difficult for us just to having or gaining the same nutrition again and again. So it is the cause for the reduction of the nutritional value of the soil, and that's why we have to put on the manures or fertilizers to the soil. So today's topic is manure. So manure and fertilizer are the major source of nutrition for the field, guys. ओके, सो मैन्योर्स क्या होते हैं, पहले अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैन्योर्स होते क्या हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल थिंग्स अबाउट इट. द मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनको कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं किसी भी प्लांट्स के डिकम्पोजिशन होने के बाद, या फिर किसी भी एनिमल्स के, जैसे काऊ डंग है, आप उनको अगर कंपोस्ट करना चाहते हो तो फिर इसके थ्रू ही हम लोग मैन्योर्स को प्रिपेयर करते हैं. मैन्योर्स क्या होते हैं, एक डिफरेंट टाइप के क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सॉइल को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है गाइस. सो इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मैन्योर्स है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये बेस्ट स्ट्रॉ, खेतों में जो खरपतवार बचे हैं उनसे, या फिर काऊ डंग जस्ट लाइक गाय के गोबर से, या फिर इस तरह की प्रिपेयर्स को हम लोग डिकम्पोजर्स के थ्रू उस पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करवाते हैं और उसके बाद हम उसे गेन करते हैं. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सॉइल के लिए फ़ायदेमंद उपयोगी उर्वरक साबित होता है, फर्टिलाइजर साबित होता है. तो मैन्योर्स बहुत ही ज़्यादा हद तक कैपेबल है सॉइल की फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए. सो मैन्योर्स ऑल्सो कंटेन सम मोस्टली लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स. इसमें कोई खास तरह का न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है, इसमें सारी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं. मोस्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, चूँकि ये ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बनता है. ओके गाइज, सो मैन्योर्स कंटेन्स द न्यूट्रिशन इन स्मॉल अमाउंट्स एंड therefore are needed just for the supply of the crops in the large quantity. इसलिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें अपने खेतों में देना होता है. चूँकि ये बल्कि होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, इन्हें ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसलिए हम इसे जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, चूँकि ये बल्कि होता है, बहुत ही ज़्यादा भारी होता है. ओके, सो मैन्योर आर नॉट न्यूट्रिशनल स्पेसिफिक. ये किसी खास एक न्यूट्रिशन को लेकर स्पेसिफिक नहीं होता है. अगर आपके सॉइल में सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन की कमी है और आपको सॉइल को वो प्रोवाइड करवाना है, तो इस सिचुएशन में आप सॉइल को ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसे एक खास न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़रूरत है. तो आप उस टाइम क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है ना, कि सिर्फ आपको सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, कोई एक खास न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा, और उसका जो
एक्टिंग टाइम है, जो वो एक्टिविटी शो करना स्टार्ट करेगा, उसके लिए वो जो टाइम पीरियड लेता है वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है गाइज. ओके, सो मैन्योर्स आर nutritional are not nutritional specific that are, and it is also very much नॉट कन्वेनियंट टू स्टोर. हम इसे कहीं भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. मैन्योर्स बल्कि होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. मैन्योर्स को रिसाइकल करना ईजी है और ये पॉल्यूशन नहीं करते हैं. एक यही चीज़ खास बात है कि मैन्योर्स का जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो डेड डिकम्पोज चीज़ों को और भी ब्रेक डाउन करके ही बनाता है. तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इको फ्रेंडली है मैन्योर्स का उपयोग, और इसको बहुत ही ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट आसानी से रिसाइकिल कर सकता है. ओके गाइज, सो रोल ऑफ मैन्योर्स. अब हम लोग जानेंगे कि मैन्योर्स का आखिर हमारे खेतों में या फिर हमारे क्रॉप फील्ड्स में क्या यूज़ है, क्या रोल है, वो क्या प्ले करता है. ओके, सो मैन्योर्स अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन इन 3 ways. 3 तरीक़ों से मैन्योर्स क्या है, फर्टिलिटी को और सॉइल के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है दे इनरीच द सॉइल न्यूट्रिशन. वो सॉइल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू खो चुका है, उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को सॉइल को अगेन प्रोवाइड करवाते हैं. ओके गाइज, सो बीइंग रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर्स, मैन्योर्स इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर ऑल्सो. दूसरा ये पॉइंट भी है कि वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं. ओके, और तीसरा है कि दे प्रोवाइड फूड फॉर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच वाज लाइंग इनसाइड द सॉइल. जैसे अर्थवर्म है और बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं हम, इंसेक्ट्स हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और बेनिफिशियल है, जिनके थ्रू हमारे क्रॉप फील्ड को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है. तो ऐसे बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को भी ऑर्गेनिक मैटर जो है मैन्योर वो फूड प्रोवाइड करवाता है. ओके गाइज, सो हमने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखे हैं जो कि मैन्योर्स जो रोल प्ले करते हैं. तो सबसे पहला इसमें था कि वो सॉइल को इनरीच करते हैं. दूसरा था सॉइल के टेक्सचर और सॉइल को एयरेटेड करते हैं, यानी कि इसमें हवा अच्छे से डीपली जा सके, परफोरेट हो सके, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मैन्योर्स. एंड तीसरा है कि ये अर्थवर्म और ऐसे अनेक ऑर्गेनिक चीज़ें जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, जो हमारे क्रॉप फील्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो उनके लिए एक न्यूट्रिशन देते हैं जिन पे वो फीड कर सके, जिनके लिए वो रह सकें. ओके गाइज, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैन्योर, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैन्योर्स आर प्रेजेंट nowadays. Okay, so the first one is farmyard manure. Okay, जिसे हम लोग FYM भी कहते हैं, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर्स. ओके गाइज, सो सेकेंड वन इज़ कंपोस्ट एंड थर्ड वन इज़ वर्मी कंपोस्ट. सो अगेन हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर ले ताकि हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक्स को ख़त्म कर लें. आई नो कि आप भी ज़्यादा जल्दीबाजी में हो, लेकिन टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ. ओके गाइज, सो फार्म यार्ड मैन्योर्स क्या होते हैं, फार्म्स के जितने भी डेड रिमेनिंग्स बचते हैं, जो भी काउ डंग होता है, अगर हम एनिमल रेयर कर रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं हमारे पास, जितनी भी कचरे की चीज़ हैं, जैसे खरपतवार हैं, खेतों से आए हुए काउ डंग्स हैं, और जितना भी यूरिन है, क्रॉप रिड्यूस जो बचा हुआ है फील्ड्स में, जो भी अनाज के बाद जो भी बचता है, उन सबों को आप यूज़ कर सकते हो किसके रूप में, मैन्योर्स के रूप में. इसे हम लोग करते हैं फार्म यार्ड मैन्योर. सो दिस मिक्सचर आफ्टर डिकम्पोजिशन इन द पिट, जिसे हम एक गड्ढा खोदते हैं, उनमें इन सारी चीज़ों को डालते हैं और उसके साथ हम डिकम्पोजर्स को भी डालते हैं. क्या होता है, इस गड्ढे को जब हम बंद करते हैं, इस पिट को, इस डंप को जब हम बंद करते हैं गाइस, तो फिर क्या होता है, डिकम्पोजर्स अपनी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और फास्टली एक्टिविटी करके उस सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके उसे एक खास इनरिच्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं. और जिसकी वजह से ये क्या होता है, फार्म यार्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन कंटेन करता है 0.5%, उसके बाद पोटेशियम है 0.5% और उसके बाद फॉस्फेट भी है 0.2%. सो गाइज, हमने देखा कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फार्म यार्ड मैन्योर्स हमें प्रोवाइड कर सकती है हमारे सॉइल्स को, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने इन सभी चीज़ों के बारे में देखा. अब है नेक्स्ट वन इज़ द कंपोस्ट. कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, कंपोस्ट भी एक तरह का मैन्योर है जिन्हें हम तैयार कर सकते हैं इसी तरह पिट बनाकर ही. पिट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी वेजिटेबल और जो भी मैटर जो हम लोग खुद के लिए फीड करते हैं, उसके जो पेल्स हैं यानी छिलके हैं, अदरवाइज़ जो भी फूड जो बच गया है जिसका यूज़ नहीं है, उन सारे फूड्स को क्या करते हैं, हम उसमें डालते हैं. स्ट्रॉ लेते हैं, खरपतवार हो गए या फिर काउडंग है. वी ऑल दिस थिंग्स आर being put in the pit and again the decomposers work on it and transfer it in the earth
rich organic materials that are the beneficial for the soil. So it again becomes an organic fertilizer or the organic manure that enrich or that can regain the soil fertility. Okay guys, so ये था कंपोस्टिंग. कंपोस्ट में इसे प्रिपेयर करने में गार्बेज बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है. 1.4% नाइट्रोजन इससे हम गेन करते हैं, 1.4% पोटेशियम भी और फॉस्फेट भी. तो हमने देखा कि फार्म यार्ड जो हम मैन्योर्स यूज़ कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कंपोस्ट, और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा है लास्ट वाला जिसे हम जानने वाले हैं अब वर्मी कंपोस्ट. यानी जब भी हम कंपोस्ट का जो प्रोसेस किए हैं उसको अगर हम डिकम्पोजर्स पे ना छोड़कर अगर उसे अर्थवॉर्म के थ्रू किया जाता है तो ये क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट. यानी कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्ट, एंड अर्थवॉर्म हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल्स व्हिच वाज प्रेजेंट इन द composting pit. Okay guys, so this activity along with the extra activity of the soil with the help of worm can makes the compost rich in more nutrition. ठीक है, अर्थवॉर्म रखने से हमें यही फ़ायदा होता है कि वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कहीं मतलब अभी कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा अच्छा है. देन आफ्टर सेकंड में आता है कंपोस्ट, और उससे भी थोड़े से कम न्यूट्रिशन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? यू आर राइट, एग्जैक्टली हमें फार्म यार्ड मैन्योर्स से मिलते हैं. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. आई थिंक आई हैव fully explained you about the manures and you all people are also be satisfied. I think if you are not, then put it in the comment section, and if you are satisfied then also you have to put in the comment section that did you like this session or not, and what you want in the next session. So please, if you liked it then please press the like button, share it with your friends, subscribe my channel, and thank you so much for being with me. Love you guys.